Mm, Okay, so I think today I will have to take few more time from your side, okay? And just for recording, I will have to go back once again, okay? So I will just quickly revise what things we finished, yeah? So what we said, ki only understanding of a nutritional aspect, okay? It is not sufficient, it is not enough. Along with that, what you are supposed to know is what are the various problems that are concerned with the nutrition, what are the various social aspects that are concerned with the nutrition, okay? तो ये जो social aspects है, what we are saying, तो these aspects they are mainly concerned with the hunger, okay? And secondly they are mainly concerned with the malnutrition, okay? So we are going to talk about malnutrition, okay? So please for me listen once again, okay? So malnutrition, what it includes? It includes undernutrition, it includes overnutrition, it includes imbalance, and it includes specific deficiency. ओके, तो जो प्रॉब्लम है अंडर न्यूट्रिशन का, इट इज कंसर्न विद द क्वांटिटी ऑफ फूड कंज्यूम्ड बाय द पर्सन. ओके, सो ओवर द एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम व्हेन person won't get enough quantity of food, okay, enough amount of food, it may result in a condition called as undernutrition, and definitely it is pathological state, okay. Second thing is overnutrition, okay. Overnutrition, whenever a person consumes excess quantity of food over the extended period of time, okay, it may result in overnutrition, ओके. तो अंडर न्यूट्रिशन है, ओवर न्यूट्रिशन है, इम्बैलेंस. व्हेन वी टॉक अबाउट इम्बैलेंस, दिस इज द पैथोलॉजिकल स्टेट विच ऑकर्स व्हेन द essential nutrients they are not consumed in appropriate proportion, or what we can say, imbalance is a pathological state when it occurs when the essential nutrients they are consumed in disproportionate amount, okay. तो उनका proportion adequate नहीं है, proportion proper नहीं है, तो imbalance होगा. imbalance में deficiency हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, okay. So clinical evidence of deficiency we may get or we won't get, okay. Specific deficiency में क्या होने वाला है? Specific deficiency, this is the condition which occurs when there is deficiency of one or more essential nutrients, okay. तो important deficiency disorders जो हमने पढ़े हैं, okay, so we have talked about nutritional anemia, we have talked about iodine deficiency disorders, okay. There are so many things, whatever different deficiencies that you know, that you can include under specific deficiency, okay. So don't forget, this is undernutrition, overnutrition, imbalance, and specific deficiency. So the term malnutrition में कोई पर्सन ओबेज है तो वो भी आएगा, because malnutrition includes overnutrition also. So this is very basic thing to understand, okay. So four important terms: undernutrition, overnutrition, imbalance, and specific deficiency, okay. Second important thing is what age group most commonly affected. So here you should not forget under 5 age group, and even we should have to pay attention to children up to 15 years of age, okay. As far as India is concerned, and the undernutrition is concerned, and most commonly affected age group is concerned, this is under 5 age group, okay. तो ये under 5 age group है which is most commonly affected, okay. What important nutritional deficiency diseases are there? Here we are talking at global level, okay. तो global scale पे हम अगर देखते हैं worldwide, if you see, okay, so you can see here enlisting of 5 conditions. तो यहाँ पे 5 nutritional disorders है जो enlist किए हैं, and all these disorders they are forming the tip of iceberg, okay.
So these conditions, it includes wasting, it includes stunting, it includes xerophthalmia, it includes nutritional anemia, and it includes endemic goiter. Okay, so 5 important conditions forming the tip of iceberg. Tip of iceberg, the person who is concerned with the tip of iceberg is clinician. Okay, and the person who is concerned with the huge, with the vast submerged portion is the epidemiologist. Okay, so epidemiologist is mainly concerned with the submerged portion. Okay, like we can compare nutritional disorders, we can compare many other disorders. कम्युनिकेबल डिजीजेस को भी कंपेयर कर सकते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को भी कंपेयर कर सकते हैं. तो यहाँ पे ये जो 5 कंडीशंस है, दीज आर फॉर्मिंग टिप. जो बाकी के डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स आपको पता है, जो कुछ भी न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स पता है, दे आर फॉर्मिंग दी huge submerged portion. Okay, यहाँ पे you can see one wavy line, zigzag line. Okay, तो this is line of demarcation. ये लाइन से हमें क्या पता चलेगा, क्लिनिकली एपरेंट क्या है, एविडेंट क्या है. जो क्लिनिकली एपरेंट है, जो क्लिनिकली एविडेंट है, वो ऊपर है. ओके, और जो नीचे है वो एविडेंट नहीं है. ओके, तो यहाँ पे कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जितने भी कैरियर्स है, okay, you know concept of carriers, so all carriers, okay, all those persons which are having subclinical infections, okay, NCDs के बारे में अगर आप बात करते हो तो प्री सिम्टोमेटिक जितने भी केसेस है, जितने भी लोग हैं जिनमें ये डिजीज का पैथोजेनेसिस चल रहा है लेकिन डिजीज मैनिफेस्ट नहीं हुआ है, सो ऑल दैट इट फॉर्म्स द सबमर्ज्ड पोर्शन. ओके, सो टिप ऑफ आइसबर्ग में 5 important conditions are there: wasting, stunting, xerophthalmia, nutritional anemia, and endemic goiter. Yeah. What can be the various effects of malnutrition on the community? Okay, so these effects we can categorize as direct effects and we can categorize as indirect effects. So direct effects में whatever deficiency disorders are there, all these conditions can be included, or even whatever the conditions that occurs because of excess consumption. Okay, all that we can include. But here the most important thing is to understand what can be the indirect effect. Okay, so when we talk about indirect effects, okay, here it mainly includes what you are supposed to know. Again, 2 terms, same terms we are going to repeat. So one is morbidity, and can you tell me other term? One is morbidity, and can you tell me other term? Yes? Yes. So indirect effect, it is mainly concerned with the morbidity or mortality. Effect क्या होने वाला है, ये दोनों भी बढ़ने वाले हैं. So what we can find, there is high morbidity or increased morbidity and high mortality or increased mortality. Okay, तो specifically young children में अगर हम देखते हैं तो this is the most important indirect effect of malnutrition. Okay, morbidity and mortality. So when we say about morbidity, basically what happens, all those children who are malnourished, or to be specifically who are undernourished, okay, undernourishment, this is the most important predisposing factor which is concerned with the infections, and again that infections, it leads to malnutrition or undernutrition, and that vicious cycle continues. ओके, तो इनमें इन्फेक्शंस की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी. ओके, सो देर विल बी इंक्रीज्ड morbidity. Another important thing what we can say in relation to the overnutrition. Okay, तो जहाँ पे overnutrition है वहाँ पे indirect effect क्या होगा, तो overnutrition, it is concerned with different health hazards, and nowadays what we can find is there is increased morbidity, or you can say there is increased incidence which is concerned with certain conditions like obesity है, तो हमें इंसिडेंस ज़्यादा कम्युनिटी में क्या दिखाई देगा, ओबेसिटी के पेशेंट्स ज़्यादा है, डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, हाइपरटेंसिव लोग हैं, ओके, गॉल ब्लैडर डिजीजेस के लोग हैं. ऑल दीज आर दी indirect effects. Okay, so these are the indirect effects which are concerned with
malnutrition. Okay, so under two headings you are supposed to mention effects of malnutrition on community, direct effects and indirect effects. Okay, one more important sector we should not forget for indirect effects is maternal and child health. It is maternal and child health. One sec. Ashwini Chopde, Ashwini Chopde, please mute yourself. Please mute yourself. Ash. Hmm. Okay. So what we said, this is malnutrition, maternal malnutrition. This is one of the most important factor which is concerned with the low birth weight, and definitely it can contribute to increased maternal mortality. Okay, तो अलग अलग group के हिसाब से भी you can think and accordingly you can mention. Okay, mortality. Regarding mortality, what we can say, mortality डेवलपिंग कंट्रीज में हम देखते हैं, ओके, तो नियर अबाउट 50% डेथ्स, ओके, 50% डेथ्स, अंडर 5 डेथ्स. ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट अंडर 5 एज ग्रुप. ओके, हाई रिस्क जो एज ग्रुप है वो अंडर 5 है. डेवलपिंग कंट्रीज में टोटल डेथ्स है जो 50% डेथ्स है, they are concerned with the malnutrition. Okay, so this proportion is very high in developing countries. If we compare with developed countries, तो developed countries में proportion कम है, this is less than 5%. Okay, तो उनके वहाँ पे ये इतना प्रॉब्लम नहीं है जिनका, or the problem which is mainly concerned with the developing countries. Okay. Now another heading while mentioning answer to this question you are supposed to know is what is ecology of malnutrition. So under this total 5 headings are given by KPARC. These headings are same as given by KPARC. So it includes conditioning influences, it includes cultural influences, it includes socio-economic factors, it includes food production, and it includes health and other services. Okay, तो conditioning influences है, one by one we will try to understand these things. Okay, तो यहाँ पे कंडीशनिंग इन्फ्लुएंसेस में आपको जो समझना है बेसिकली इट इंक्लूड्स ऑल दोज फैक्टर्स विच आर इनडायरेक्टली एसोसिएटेड विद द माल न्यूट्रिशन. ओके, तो इनका इनडायरेक्ट एसोसिएशन है माल न्यूट्रिशन के साथ. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग what you should not forget is the infectious diseases. Okay, so here conditioning influences are nothing but infectious diseases and the vicious cycle that you are supposed to understand. Now what happens, all those children which are malnourished, okay, they are more vulnerable to infectious diseases. Okay, तो malnutrition है, to be specifically undernutrition है, तो infection के chances बढ़ने वाले हैं. ओके, जैसे कि पैरासाइटिक इन्फेक्शंस है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस है, डायरिया है, ये सब इन बच्चों में ज़्यादा होगा. और इन्फेक्शन का इम्पैक्ट वापस क्या होगा, ओके, अगर डायरिया है तो यू नो that absorption of nutrients will get affected. Okay, that further contributes to malnutrition and the vicious cycle continues. Okay, so malnutrition, it can lead to infection or infectious diseases, and infectious diseases can further lead to malnutrition. Okay, तो एक ही vicious cycle है that you are supposed to remember. Okay, what are various cultural influences. Okay, तो cultural influences आपको सिर्फ समझना है. Okay, how different food practices, how different things are concerned with the malnutrition. Okay, तो cultural practices में जो important thing है it is the food habits. Okay, तो food habits अगर आप देखते हो तो food habits in different parts of India, specifically if we talk about the southern or eastern states. Okay, तो उनका प्रिंसिपल फूड राइस है. ओके, नॉर्थ में हम जाते हैं तो उनका प्रिंसिपल फूड व्हीट है. ओके, तो दिस स्टेपल फूड चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. Okay, and already we have discussed consumption of rice, consumption of jowar, consumption of maize, how it is concerned with occurrence of different diseases. Okay, तो जो staple food है उसके साथ आपको ये correlate करना है. Okay, please permit me to end this meeting and you all please rejoin.
Am I audible to all of you? Thank you. थैंक यू। ओके, तो कल्चर का इन्फ्लुएंस कैसे होगा माल न्यूट्रिशन पे? इन रिलेशन टू फूड हैबिट्स वी हैव सीन स्टेपल फूड, it changes from place to place, and accordingly that can have impact on the occurrence of malnutrition. Okay, सो वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। ओके, तो जैसे स्टेपल फूड है वहाँ के एरियाज में कुछ माल न्यूट्रिशन रिलेटेड कंडीशंस हमें दिखाई देंगे विच इज कंसर्न विद दर प्रिंसिपल फूड। ओके, तो सेकेंड हमें जो समझना है इट इज कंसर्न विद द कस्टम्स एंड बिलीव्स। ओके, तो हमारे पास जो मोस्ट वल्नरेबल एज ग्रुप है, ओके, द मोस्ट वल्नरेबल एज ग्रुप इज चिल्ड्रन। ओके, इन्फेंट्स है, प्रेग्नेंट विमेन है, लैक्टेटिंग मदर्स है। एंड इफ वी टॉक अबाउट डिफरेंट कस्टम्स एंड बिलीव्स, ओके, तो हमारे सोसाइटी में, हमारे कल्चर में जो कुछ भी कस्टम्स है, बिलीव्स है, तो बहुत सारे ऐसे हैं विच आर अप्लाइड विच आर अप्लाइड टू दीज वल्नरेबल एज ग्रुप्स। ओके, तो ये वल्नरेबल एज ग्रुप को अप्लाई करते हैं। जैसे कि आई विल जस्ट गिव यू फ्यू एग्जांपल्स। ओके, तो आपने हमारे यहाँ पे भी देखा होगा पपैया। ओके, पपैया इट इज़ अवॉइडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ओके, तो लोगों का बिलीफ है कि ये खाएंगे तो एबॉर्शन हो जाएगा। ओके, तो दूसरा एक बिलीफ जो आपको कॉमन दिखाई देगा वो है कि द क्वांटिटी ऑफ फूड विच इज गिवन टू प्रेग्नेंट women, ओके, इट इज लेस। ओके, तो लोग क्या सोचते हैं, ज्यादा अगर हम खाना देंगे, ओके, तो क्या होगा, बेबी बढ़ जाएगी और फिर नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। ओके, सो द डिलीवरी विल बिकम डिफिकल्ट, सो दैट्स वाई इनफ क्वांटिटी ऑफ फूड इट इज नॉट गिवन। ओके, सेकेंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, गुजरात में आप देखते हो तो जो भी लैक्टेटिंग मदर्स है उन्हें लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स नहीं दिए जाते। ओके, सो देर आर सो मेनी थिंग, एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज कंसर्न विद द इन्फेंट्स इज नॉन फीडिंग ऑफ कोलेस्ट्रॉम। ओके, जो कोलेस्ट्रॉम एंटीबॉडीज में रिच है, जो बेबी की इम्युनिटी बढ़ाने वाला है, वो नहीं दिया जाता। ओके, पहिलं चीक असतो तो द्यायचा नाही असं खूप ठिकाणी belief आहे. Okay, so certain beliefs we are supposed to understand. Okay, now if we talk about religion it is mainly concerned with the food taboos. Okay, regarding food taboos already we have talked. There are certain Hindu orthodox, okay, which do not consume animal food, although it is available they are not consuming. Okay, beef nahi lete Hindu log. Okay, like this is concerned with the food taboos. ओके, सेकेंडली हम फूड फैट्स के बारे में बात करेंगे। फूड फैट्स क्या है, दिस इज कंसर्न एट पर्सनल लेवल और इट इज कंसर्न एट इंडिविजुअल लेवल। ओके, तो ये जो है ये इंडिविजुअल लेवल पे है, ये पर्सनल लेवल पे है, लेकिन ये क्या है, फूड फैट्स आर कंसर्न विथ पर्सनल लाइकिंग और डिसलाइकिंग। ओके, तो हर एक पर्सन का खाने के बारे में कुछ लाइकिंग होता है, कुछ डिसलाइकिंग होता है, लेकिन इसका प्रॉब्लम हमें कहाँ पे आता है, सो इट क्रिएट्स प्रॉब्लम फॉर करेक्टिंग दी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। ओके, तो जब भी हमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज करेक्ट करनी है, हम जो कुछ भी एडवाइस देंगे लोगों को, अगर उन्हें वो पसंद नहीं है तो these people won't consume that. Okay, so this creates some problem for correcting nutritional deficiencies. Okay, और वो पर्सन का हेल्थ देखते हैं तो इवन इफ द पर्सन हु इज नॉट कंज्यूमिंग न्यूट्रिशियस फूड कैन हैव डेफिशिएंसीज। ओके, तो दोनों साइड है। कुकिंग प्रैक्टिसेस, ऑलरेडी ऑल कुकिंग प्रैक्टिसेस वी हैव डिस्कस्ड व्हेन वी डिस्कस्ड डिफरेंट विटामिन्स। ओके, जैसे कि राइस में एक्स्ट्रा वाटर डाल देंगे फिर वो डिस्कार्ड करेंगे, या फिर वेजिटेबल्स है जिसमें बहुत सारे वाटर सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे, व्हाट वी डू और व्हाट पीपल डू, तो ओपन पैन में बॉईल करेंगे। ओके, ठंडे पानी में डाल देंगे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं विच कैन कॉज लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड विच कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू माल न्यूट्रिशन। तो कुकिंग प्रैक्टिसेस के बारे में यू आर सपोज टू नो। ओके, चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस, तो चाइल्ड रियरिंग अभी आपको ये पता है, बेबी के फीडिंग के बारे में जब हम सोचते हैं 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग देना है, बाकी कुछ नहीं देना है, बट आफ्टर 6 months
After 6 months, what we are supposed to do? After 6 months we are supposed to give supplementary food. Okay, weaning हमें start करना है, तो उस time appropriate precautions are very essential. And what practices we can see is use of bottles, okay, for feeding the babies. तो मिल्क दूध देने के लिए जो बॉटल्स का यूज किया जाता है, ओके, वहां पे अगर हाइजीन मेंटेन नहीं किया जाता है तो दिस contributes to diarrhea and which can further contributes to malnutrition. Okay, even nowadays different artificial foods are also available that can be given. Okay, so child rearing practices is another important thing which is concerned with the malnutrition. Okay, सो मिसलिनियस में सिर्फ एक ही एग्जाम्पल हमें देखना है कि देर आर सर्टन कम्युनिटीज वेयर दी मेल्स, जो कुछ भी घर में मेल्स है वो पहले खाना खाएंगे, फिर जो कुछ भी फीमेल्स है वो बाद में खाना खाएंगी. ओके, तो इसका इम्पैक्ट कैसे हो सकता है? समटाइम्स अगर पीछे जो खाना बचता है वो अगर एडिक्वेट नहीं है, उसका क्वांटिटी अगर एडिक्वेट नहीं है, ओके, तो व्हाट इट कैन डू, this quantity, okay, inadequate intake, okay, it may contribute to malnutrition in females. Okay, so there are miscellaneous thing, and one should not forget alcohol consumption. Okay, chronic alcoholism, it mainly leads to ओवर न्यूट्रिशन. ओके, तो अल्कोहल से हमें कैलोरीज मिल रही है, ये हमें पता है, तो दिस विल लीड टू ओवर न्यूट्रिशन. ओके, तो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस में कैसे कैसे होता है दैट वी हैव सीन. इकोलॉजी ऑफ माल न्यूट्रिशन में जो थर्ड फैक्टर हम देखेंगे दैट इज सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स. ओके, तो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो है वो पॉवर्टी है. ओके, पॉवर्टी नाउ अगेन वेब ऑफ कॉजेशन, इंटरलिंक्ड फैक्टर्स है जो आपको समझने हैं. ओके, पॉवर्टी है तो इनकम कम रहता है. ओके, इनकम कम रहेगा तो इनफ क्वांटिटी ऑफ फूड इज नॉट अवेलेबल. ओके, फूड की क्वांटिटी क्वालिटी दोनों भी अफेक्ट हो जाएंगे. ओके, तो पुअर फैमिलीज में या फिर लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में हमें क्या दिखाई देता है? फैमिली साइज जो है वो लार्ज है. ओके, तो घर में बहुत सारे बच्चे रहेंगे. ओके, तो अगेन इनएडिक्वेट फूड. ओके, फूड की अवेलेबिलिटी नहीं रहेंगी. प्लस जहाँ पे ये लोग रहते हैं वहाँ का अगर हम एनवायरमेंटल कंडीशंस देखते हैं तो इनसैनिटरी एनवायरनमेंट है. ओके, सो इनसैनिटरी एनवायरनमेंट है that can contribute to infection can further contribute to malnutrition. okay, और थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर है इलिटरेसी. ओके, तो न्यूट्रिशन के बारे में एक तो उन्हें ज्यादा पता नहीं है, दूसरा थिंग है इग्नोरेंस. ओके, अगर पता भी है तो इग्नोर करेंगे. ओके, सो देर आर सर्टन सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स विच आर कंसर्न विथ माल न्यूट्रिशन. ओके, फूड प्रोडक्शन. तो फूड प्रोडक्शन, अगर हम ऐसा सोचते हैं कि लोगों को एडिक्वेट फूड नहीं मिल रहा है इसलिए अंडर न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है, तो व्हाट वी विल ट्राई टू डू, वी विल ट्राई टू इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन. ओके, अगर हम ऐसा सोचते हैं कि हम फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे एंड वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ माल न्यूट्रिशन. ओके, तो डेफिनेटली दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. लेकिन अगर हम सिर्फ प्रोडक्शन करते हैं और उसका डिस्ट्रीब्यूशन अगर इक्वल नहीं होता है, ओके, तो अगेन इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम. सो अगर फूड प्रोडक्शन एडिक्वेट है लेकिन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ओके, पुअर लोगों तक ये फूड अवेलेबल नहीं है, तो इट कैन कंट्रीब्यूट टू माल न्यूट्रिशन. ओके, सो वी कैन से हियर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, सो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, प्रिवेंशन में क्या करना पड़ेगा कि फूड प्रोडक्शन को बढ़ाना भी है और उसे सब लोगों तक पहुंचाना भी है. ओके, सो फूड प्रोडक्शन इज अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच इज कंसर्न विद द माल न्यूट्रिशन. ओके, देन what different health and other services are available that we are supposed to see. Okay, so under this heading 4 subheadings are there. एक तो न्यूट्रिशनल सर्वेलेंस है, दूसरा जो है न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन है, तीसरा जो है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन है, और चौथा जो है वो हेल्थ एजुकेशन है. ओके, सो इट्स सर्वेलेंस, इट्स रिहैबिलिटेशन, इट्स सप्लीमेंटेशन एंड हेल्थ एजुकेशन. ओके, तो न्यूट्रिशनल सर्वेलेंस का
क्या रोल है? ओके, तो न्यूट्रिशनल सर्वेलेंस बेसिकली दिस इज कंसर्न विद द कम्युनिटी। ओके, तो जब भी हम कम्युनिटी में सर्वेलेंस करेंगे तो व्हाट वी कैन कम टू नो, वी कैन कम टू नो न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द कम्युनिटी। ओके, तो कम्युनिटी का न्यूट्रिशनल स्टेटस हमें पता चलेगा। ओके, तो कौन से डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स है, कौन से एक्सेस कंजम्पशन रिलेटेड डिसऑर्डर्स है, ये सब हमें पता चलेगा। ओके, तो न्यूट्रिशनल सर्वेलेंस की फैसिलिटी जहाँ पे अवेलेबल नहीं है वहाँ पे माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम अगर होगा भी तो दिखाई नहीं देगा। ओके, सो वी वोंट कम अक्रॉस दिस प्रॉब्लम। तो न्यूट्रिशनल सर्वेलेंस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग। ओके, सेकेंडली न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन है। ओके, तो न्यूट्रिशन रिहैबिलिटेशन सेंटर्स अवेलेबल है या नहीं है। ओके, तो ये सेंटर्स बेसिकली जो बच्चे हैं जिनको सिवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन है, ओके, या फिर जिनको सिवियर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, इन बच्चों के लिए उनका न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो रिगार्डिंग दिस द न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, ओके, उसकी अवेलेबिलिटी है या नहीं है। ओके, सो दिस इज अनदर फैक्टर विच कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू माल न्यूट्रिशन। ओके, बिकॉज हॉस्पिटलाइजेशन उनको इसेंशियल रहता है, हॉस्पिटलाइज करने के बाद उनका हमें रिहैबिलिटेशन करना है। ओके, तो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स अगर नहीं है तो बच्चे रहेंगे, ओके, जिनका रिहैबिलिटेशन नहीं होगा, ओके, जो कि अंडर नरिश्ड बच्चे हैं। ओके, सेकेंड इज न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन। ओके, तो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन में हमारे यहाँ पे ऐसे स्कीम्स है या नहीं है जिससे हम सप्लीमेंट्स देते हैं टू बी स्पेसिफिकली वल्नरेबल एज ग्रुप। ओके, तो अगर फैसिलिटीज अच्छी है तो माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम कम रहेगा, लेकिन न्यूट्रिशन सप्लीमेंटेशन की फैसिलिटीज अगर नहीं है तो डेफिनेटली वी कैन कम अक्रॉस प्रॉब्लम ऑफ माल न्यूट्रिशन। ओके, हेल्थ एजुकेशन अनदर इम्पोर्टेंट थिंग। जो कुछ भी कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनको न्यूट्रिशन के बारे में पता है या नहीं है। ओके, सो वेदर वी आर हैविंग फैसिलिटीज फॉर क्रिएटिंग न्यूट्रिशन अवेयरनेस अमॉन्ग दी पीपल। ओके, ये कम है तो माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है। हियर वी आर टॉकिंग ऑफ वन साइड। ओके, सिमिलर थिंग्स विल बी रिपीटेड व्हेन वी टॉक अबाउट प्रिवेंशन। ओके, तो न्यूट्रिशनल सर्वेलेंस हम नहीं कर रहे हैं, रिहैबिलिटेशन के लिए फैसिलिटीज हमारे पास नहीं है। ओके, सप्लीमेंटेशन हम नहीं दे रहे हैं वल्नरेबल एज ग्रुप को, लोगों को अनअवेयरनेस है रिगार्डिंग न्यूट्रिशन। ओके, they are not aware about detailed aspects of nutrition. All these things can contribute to malnutrition. Okay, so this problem of malnutrition we are supposed to tackle. Okay, अभी जो next half part है that is concerned with how we are going to tackle the problem of malnutrition. Okay, the headings are very easy. Okay, first part में जो हमने देखा, okay, तो आपको माल न्यूट्रिशन में अंडर न्यूट्रिशन पता होना चाहिए, ओवर न्यूट्रिशन हो सकता है ये पता होना चाहिए, माल न्यूट्रिशन कैन बी इम्बैलेंस ये मालूम होना चाहिए, और देयर कैन बी स्पेसिफिक डेफिशिएंसीज। ओके, ये पता होना चाहिए। नाउ सेकेंड साइड अगर हम देखते हैं तो प्रिवेंटिव एंड सोशल मेजर्स हम क्या क्या लेंगे। ओके, तो 4 लेवल पे हमें सोचना है। एक तो हम फैमिली लेवल पे क्या कर सकते हैं, कम्युनिटी लेवल पे हम क्या करेंगे, नेशनल लेवल पे हमें क्या करना है, और इंटरनेशनल लेवल पे क्या फैसिलिटीज है। ओके, सो अगेन जस्ट 4 वर्ड्स, फैमिली, community, national and international level. So action at family level, action at community level, action at national level, and action at international level. Okay, so action at family level, what we can do. So basically most important aspect which is concerned with this level is हमें न्यूट्रिशन एजुकेशन देना है। ओके, तो न्यूट्रिशन एजुकेशन विल इंक्लूड सो मेनी थिंग्स। ओके, लेकिन हमारा फोकस अभी जो है, इंडियन गवर्नमेंट का जो फोकस है न्यूट्रिशन एजुकेशन जो हमें देना है
टू बी स्पेसिफिकली आइडियली ये कपल्स को देना है, ओके, लेकिन टू बी स्पेसिफिकली आवर फोकस शुड बी ऑन मैटरनल एजुकेशन, ओके। तो मदर को हमें एजुकेट करना है, मदर को हमें मोटिवेट करना है सो दैट शी कैन प्रैक्टिस ब्रेस्ट फीडिंग, ओके। तो थ्रू न्यूट्रिशन एजुकेशन वी आर सपोज टू प्रमोट ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिसेस, ओके। दूसरा जो एजुकेशन उसे हमें देना है चाइल्ड फीडिंग प्रैक्टिसेस या चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस, ओके। तो हमने एक फैक्टर ये पहले देखा था, ओके। तो बच्चों में अगर हमें इन्फेक्शन कम करना है 6 महीने के बाद जो हम फूड स्टार्ट करेंगे वो फूड क्या होना चाहिए, हाइजेनिक कंडीशंस कैसे मेंटेन करनी चाहिए, ओके। तो करंट फोकस जो है दिस इज कंसर्न विथ दीज टू थिंग्स, ओके। तो दिस इज वन मोर थिंग। इन एडिशन हम कपल्स को एजुकेट कर सकते हैं, उनका इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है उस हिसाब से व्हाट राइट टाइप ऑफ न्यूट्रिशियस फूड दे कैन परचेस, ओके। तो ये भी एजुकेट कर सकते हैं। देर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर कंसर्न विथ द एजुकेशन, ओके। तो प्रॉपर कुकिंग प्रैक्टिसेस है जो हम बता सकते हैं फीमेल्स को, ओके। मेनी एस्पेक्ट यू कैन राइट बट डोंट फॉरगेट टू मेंशन प्रमोशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एंड डोंट फॉरगेट टू मेंशन प्रॉपर एजुकेशन रिलेटेड विद द फीडिंग प्रैक्टिसेस, ओके। जो छोटे बच्चों के इन्फेंट फीडिंग प्रैक्टिसेस है उसके बारे में अप्रोप्रिएट एजुकेशन हमें देना है, ओके। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट वी कैन ऑब्जर्व इन इंडिया, ओके। तो एक हमने देखा कि प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा खाना नहीं दिया जाता बहुत सारे फैमिलीज में, ओके। उसके पीछे फॉल्स बिलीफ है, ओके। सो वी आर सपोज टू एजुकेट द पीपल और द फैमिली मेंबर्स, okay, whatever nutritional needs of pregnant and lactating women are there, it should be fulfilled, okay। तो ये fulfill होना essential है, okay। another important thing, अगर हमें दिखाई देता है कुछ टैब्यूज है जो हार्मफुल है, ओके, तो उसे हम करेक्ट करेंगे। कुछ डाइटरी हैबिट्स है जो हार्मफुल है तो फैमिली लेवल पे उसे हमें करेक्ट करना है, ओके। तो कभी कभी हमने बोला कि पुअर लोग है अफोर्डेबल नहीं है, ओके। तो अगर कुछ चीजें ऐसी हैं कि वो दे कांट अफोर्ड, ओके, वो अफोर्ड नहीं कर रहे, तो इन दैट केस व्हाट वी कैन डू, अगर शॉर्टेज है उनको प्रोटेक्टिव फूड नहीं मिल रहा है जैसे कि वेजिटेबल्स हैं, ओके, तो वी कैन प्लॅन द किचन गार्डन, ओके। तो किचन गार्डन को हम प्लॅन कर सकते हैं। म्हणजे आपल्याकडे ग्रामीण भागामध्ये किंवा पूर्वी परस बाग हा शब्द वापरला जायचा, ओके। तो वहां पे वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हैं और उससे लोगों को मिल सकते हैं। या फिर एग के बारे में अभी आपको पता है कि एग इज कंप्लीट फूड, ओके। तर ग्रामीण भागामध्ये कोंबड्या पाळणं, पोल्ट्री, ओके, कीपिंग पोल्ट्री कॅन बी वन ऑफ द इम्पॉर्टंट थिंग विच कॅन हेल्प इन प्रिव्हेंशन ऑफ malnutrition at family level, okay। तो so many things are there that can be done at family level, ओके। सो सेकेंड, कम्युनिटी लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, तो कम्युनिटी लेवल पे वॉट एवर डिफरेंट एक्शंस आर देयर वी कैन कैटेगराइज इट इनटू टेम्पररी सॉल्यूशंस एंड परमानेंट सॉल्यूशन, ओके। तो कम्युनिटी लेवल पे हमें देखना है हमारे पास कौन से टेम्पररी सॉल्यूशंस है, कौन से परमानेंट सॉल्यूशंस है, ओके। तो टेम्पररी सॉल्यूशंस में वी कैन थिंक ऑफ सप्लीमेंटरी फीडिंग प्रोग्राम्स, ओके। सप्लीमेंटरी फीडिंग प्रोग्राम्स जैसे कि मिड डे मील प्रोग्राम आहे, ओके। तर मिड डे मील म्हणजे जे मराठी आहेत त्यांना पोषण आहार योजना किंवा मध्यान्ह भोजन योजना जी शाळेमध्ये आहे, ओके। सो ऑल दोज स्कूल चिल्ड्रन हु आर गोइंग टू गवर्नमेंट स्कूल, ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली अबाउट गवर्नमेंट स्कूल, तो उनको दोपहर में खाना दिया जाता है। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ supplementation of food, okay। Another important thing is vitamin A prophylaxis program. So vitamin A prophylaxis program already we have discussed. So can any one of you tell me vitamin A prophylaxis program के बारे में, इसमें हम क्या करते हैं, ये प्रोग्राम क्यों है, इससे हमें क्या टैकल करना है, इससे हमें प्रिवेंट करना है न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस, ओके। देर आर वेरियस कॉजेस ऑफ ब्लाइंडनेस, उसमें से जो एक है न्यूट्रिशन रिलेटेड है, विटामिन ए का डेफिशिएंसी है, तो वो ब्लाइंडनेस आगे जाके नहीं होना चाहिए, ओके। सो फॉर दैट पर्पस वी आर हैविंग दिस विटामिन ए सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम जिसमें हम विटामिन ए देते हैं, ओके। तो किसे देते हैं और कब कब देते हैं, कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी वेरी फास्ट।
एक जण पटकन बोला कोणीतरी. आर यू देअर पार्टिसिपेंट्स? हाँ. हम्म. और प्रोग्राम के बारे में जो गवर्नमेंट मतलब इम्यूनाइजेशन के साथ जो इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो उसमें हम कैसा करते हैं, उसमें कौन से महीने से हमें चालू करना है? क्योंकि दिस प्रोग्राम नाउ इट इज अलोंग विथ इम्यूनाइजेशन. ओके, नेशनल इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल में जितने हम वैक्सीन देते हैं, ओके, तो उसके साथ इम्प्लीमेंट किया गया है, क्योंकि लोगों को फिर बार बार आना पड़ता है. ओके, तो पहला डोज हम कौन से मंथ से स्टार्ट करेंगे, कौन से वैक्सीन के साथ हम देते हैं विटामिन ए? NIS में. व्हाट यू आर सेइंग इज ऑल्सो राइट, बट NIS के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसा होता है? 9 मंथ में जब बेबी आता है मीजल्स वैक्सीन के लिए, ओके, तो उस टाइम वी गिव. 9 मंथ है, इन्फेंट है, 1 साल से कम है, उस टाइम हम 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट दे देंगे. ओके, उसके बाद जब आफ्टर एवरी 6 मंथ्स ये दिया जाता है. ओके. ओके, सो टेम्पररी सॉल्यूशंस है हमारे पास. परमानेंट सॉल्यूशन में हमें क्या करना है? आइडियली वी शुड हैव टू पे अटेंशन टू द बेसिक कॉज फॉर माल न्यूट्रिशन. ओके, तो जो कुछ भी कॉज है उसे हमें करेक्ट करना है. ओके, तो ये एक्शन आ जाएगा ऑलमोस्ट इंडिविजुअल लेवल पे. ओके, तो हर एक इंडिविजुअल में हमें कुछ माल न्यूट्रिशन रिलेटेड डेफिशिएंसी है, अंडर न्यूट्रिशन है, ओवर न्यूट्रिशन है, ओके, उसे हमें करेक्ट करना है. उसका जो अप्रोप्रिएट कॉज है उसे हमें करेक्ट करना है. ओके. सेकेंडली, what we are supposed to pay attention towards the जो फूड लिया जाता है, ओके, उसका एडिक्वेट क्वांटिटी होना चाहिए. ओके, और उसका क्वालिटी भी अच्छा होना चाहिए. सो अप्रोप्रिएट इनटेक, एडिक्वेट इनटेक ऑफ फूड एंड एडिक्वेट उसका क्वालिटी भी, जो कुछ भी हम फूड ले रहे हैं उसका क्वालिटी अच्छा होना चाहिए. सो हियर रिगार्डिंग ओवर न्यूट्रिशन आई वांट टू से अबाउट प्रोसेस्ड फूड्स. ओके, तो प्रोसेस्ड फूड्स नहीं लेने हैं. ओके, तो इसके लिए वी आर सेइंग क्वालिटी. ओके, तो वॉट एवर फूड वी आर टेकिंग उसका क्वालिटी भी अच्छा होना चाहिए, उसका क्वांटिटी भी ठीक से होना चाहिए. ओके, सो दिस इज वन ऑफ द परमानेंट सॉल्यूशन, दैट्स व्हाट वी कैन से. ओके, जो इंडियन गवर्नमेंट का और एक प्रोग्राम है दैट इज ICDS. ओके, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज. ICDS जो है, ICDS we are going to discuss later on in detail, but right now there are different actions which are undertaken under this program. Okay, तो ICDS जो है आशा वर्कर्स का मोबिलाइजेशन का रोल है इसमें. बेसिकली आंगनवाड़ी में जो लोग काम करते हैं, आंगनवाड़ी सेंटर्स है, आंगनवाड़ी के वर्कर्स हैं, उनका रोल यहाँ पे ICDS में ज़्यादा आता है. ओके, तो बहुत सारे एक्टिविटी यहाँ पे की जाती है. उसमें से एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है फूड सप्लीमेंटेशन. तो दिया ही जाता है, जो बच्चे आंगनवाड़ी में आते हैं उन्हें उसके साथ साथ मदर को बुलाया जाता है और मदर को न्यूट्रिशन एजुकेशन एज वेल एज हेल्थ एजुकेशन दिया जाता है. Okay, so this is one of the most important activity in India. That's what we can say, ICDS. Okay, ICDS, it is concerned with Anganwadi centers in India. Okay, it is concerned with Anganwadi. It is concerned with, excuse me, am I audible to all of you? Am I audible? Okay. Okay. Thank you. Thank you. सो ICDS, आई सेड आंगनवाड़ी सेंटर्स है इंडिया में. ओके, आंगनवाड़ी वर्कर्स वहाँ पे काम करते हैं. छोटे बच्चे आंगनवाड़ी में जाते हैं तो उन्हें फूड सप्लीमेंटेशन किया जाता है. ओके, एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट, मदर्स को न्यूट्रिशन एजुकेशन दिया जाता है. ओके, सो दीज थिंग्स आर देयर विच आर कंसर्न विद द ICDS. ओके, तो हमें और क्या करना है, तो वी आर सपोज टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. ओके, तो लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव करना है. मतलब whenever we talk about living standards, okay, this is mainly concerned with the economic capabilities of a person. Okay, तो
basically when you study the definition of health, you will be in better position to understand what I am saying. तो लिविंग स्टैंडर्ड को हमें इम्प्रूव करना है, मतलब हर एक पर्सन शुड बी इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव. ओके, हर एक पर्सन इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव होना चाहिए, सो दैट द ability which is concerned with the purchase of food, purchase of good house, okay, will get fulfilled. तो हमें क्या करना है, लिविंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करना है. ओके, सो इम्प्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड्स. सेकेंडली, इसके साथ साथ जो एनवायरमेंटल हेल्थ सर्विसेज है उसे हमें इम्प्रूव करना है. तो एनवायरमेंटल हेल्थ सर्विसेज में क्या आता है, सी आई एम टॉकिंग अबाउट एनवायरमेंट एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द हेल्थ सर्विसेज दैट आर कंसर्न विद द environment. Okay, so health services which are concerned with the environment, it mainly includes supply of safe water. Okay, it includes supply of safe water. It includes facilities for appropriate disposal of sewage. Okay, तो सीवेज डिस्पोजल फैसिलिटीज आती है. ओके, इसमें वाटर सप्लाई आता है. इससे क्या होगा, वी कैन कंट्रोल डिफरेंट इन्फेक्शियस diseases. We can control different infectious diseases. My timing is running out. I will just start this meeting again. Okay, मॅडमच्या लेक्चरची लिंक आहे का? किती वाजता आहे मॅडमचं, किती वाजता आहे मॅडमचं लेक्चर? शार्प एकच टायमिंग आहे. एक मॅडमला फक्त मॅडमला एक मेसेज टाका ना व्हॉट्सअपवरनं की एक 10 मिनिटं लागतील म्हणून, आणि 10 मिनिटं लेट स्टार्ट करायला. रुमान, हां हां हां, प्लीज. Am I audible? Am I audible to all of you? Okay. Okay, okay. Thank you. Thank you. So I think we discussed about improvement in living standards. Okay. Socio-economic development is another aspect. Okay. So socio-economic development हो जाएगा तो automatically एनवायरमेंटल सैनिटेशन अच्छा रहेगा. ओके, तो एनवायरमेंटल हेल्थ सर्विसेज देनी है लोगों को, जिससे हम इन्फेक्शियस डिजीजेस को कम कर सकते हैं. एंड वी हैव सीन द विसियस साइकिल विच इज कंसर्न विद द इन्फेक्शियस डिजीजेस एंड द माल न्यूट्रिशन. ओके, अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग,
हमें और क्या करना है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज जो कुछ भी न्यूट्रिशन के प्रॉब्लम्स है उसे हमें आइडेंटिफाई करना है और उसे हमें कंट्रोल करना है. ओके, सो वी आर सपोज टू आइडेंटिफाई, वी आर सपोज टू कंट्रोल, बट प्रिफरेबली इसे आइडेंटिफाई करने के लिए, इसे कंट्रोल करने के लिए जो कुछ भी रिसोर्सेस है वो लोकल रिसोर्सेस को हमें यूज करना है. ओके, सो बाय यूजिंग लोकल रिसोर्सेस वी आर सपोज टू आइडेंटिफाई एंड वी आर सपोज टू control the problem of nutrition, malnutrition. Okay, now third thing, at national level what we are supposed to do. Okay, at national level basically the most important focus should be on rural development. ओके, तो रूरल एरियाज का डेवलपमेंट हमें करना है. ओके, इसके लिए अगेन बहुत सारे एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स है. ओके, गवर्नमेंट के, जैसे कि यू माइट हैव स्टडीड अबाउट जवाहर रोजगार स्कीम एंड अदर स्कीम्स. ओके, तो रूरल डेवलपमेंट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट. रूरल डेवलपमेंट हमें क्यों करना है, क्योंकि हमें लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाना है. ओके, सो जस्ट टू इंक्रीज द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ रूरल पीपल, the important focus should be on rural development. Okay, second important factor, our focus should be on agricultural sector. ओके, तो एग्रीकल्चरल सेक्टर में हमें क्या करना है, अगर हमें माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम प्रिवेंट करना है तो डेफिनेटली इंक्रीज फूड प्रोडक्शन इज एसेंशियल थिंग. ओके, इंक्रीज फूड प्रोडक्शन, तो इसके लिए जो कुछ भी मॉडर्न टेक्निक्स है विच आर कंसर्न विद द फार्मिंग, तो ये हमें लोगों को बताना है. ओके, जो फूड प्रोड्यूस किया जाता है उसका क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, तो उसके लिए जो सीड्स यूज करते हैं उसका क्वालिटी बेटर होना चाहिए. ओके, फर्टिलाइजर्स का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए. दूसरा हम क्या कर सकते हैं, एक्सक्यूज मी, वी कैन इंक्रीज द एरिया ऑफ कल्टीवेशन. ओके, कल्टीवेशन का एरिया हम इंक्रीज करेंगे. सेकेंडली व्हाट वी कैन डू इज इरिगेशन. ओके, फोकस कहाँ पे है, बहुत सारा एरिया कल्टीवेट किया लेकिन पानी नहीं मिल रहा है, तो अगेन देयर विल बी प्रॉब्लम. ओके, तो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स शुड बी देयर. सो व्हाट वी सेड, इट्स रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चरल सेक्टर के ऊपर हमें ध्यान देना है, प्रोडक्शन बढ़ाना है, उसके साथ साथ इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है उसे. ओके, the most important role is of stabilization of population. Here we are talking about population control. Okay, तो जो इंडिया का पॉपुलेशन है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ इंडिया इज द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. ओके, तो ये पॉपुलेशन को हमें कंट्रोल करना है. ओके, तो ये कंट्रोल करने के लिए अप्रोप्रिएट मेजर्स बर्थ स्पेसिंग के है. ओके, स्मॉल फैमिली नॉर्म है, डिटेल्स ऑफ डेमोग्राफी और फैमिली प्लानिंग में पढ़ोगे. Okay, so right now here just remember population control. Okay, secondly we can have nutrition intervention programs. Okay, all interventions programs we have studied. Okay, so we have studied about the program which is concerned with the control of anemia. ओके, तो नेशनल न्यूट्रिशनल एनीमिया प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम हमने देखा, एनीमिया मुक्त भारत अभी का जो रिसेंट है दैट वी हैव सीन. ओके, एंडेमिक गॉइटर के लिए आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स कंट्रोल प्रोग्राम हमने देखा. तो बहुत सारे प्रोग्राम्स है विच आर कंसर्न विद द न्यूट्रिशन. ओके, तो न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्लीमेंट होने चाहिए. ओके, सो दैट शुड बी फॉर्मुलेटेड, दैट शुड बी इम्प्लीमेंटेड. ओके, सेकेंडली, any other program that you can tell me related with this nutrition intervention? Any other program intervention related जिथे आपण न्यूट्रिएंट देतोय किंवा जिथे डायरेक्टली आपण फूड सप्लाय करतोय? पटकन बोला, प्लीज बी फास्ट. एनी वन ऑफ यू, आई जस्ट वांट one or two examples from your side. None of you? No one? No one? विटामिन ए के बारे में हमने पहले बात की थी, इससे रिलेटेड कौन सा प्रोग्राम है जो आपको पता होना चाहिए? नेम ऑफ द प्रोग्राम. यस,
So this is how you are supposed to correlate. I just want the correlation part from your side. Okay, very good, very nice. Next part is what are various nutrition related health activities. Okay, तो nutrition related जो health activities है इसमें we are focusing on several other programs. Okay, तो हमारे पास दूसरे programs है which are not directly related to nutrition, but it will have profound effect on nutritional status और nutritional disorders. Okay, directly nutrition से related ये programs नहीं है, लेकिन ये program का implementation अच्छे से हो जाता है तो definitely we can control nutritional disorders. Okay, तो ये prevent कर सकते हैं, ये control कर सकते हैं. So many programs are there which are concerned with the infections or which are concerned with the diseases. तो यहाँ पे आपको पहले वाला लिंक पता है. ओके, कंडीशनिंग इन्फ्लुएंसेस, इसमें हमने क्या देखा था? इन्फेक्शन. इट इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू माल न्यूट्रिशन. ओके, तो ये दो चीजें हैं विच आर इंटर रिलेटेड एंड हैविंग वेरी क्लोज रिलेशन. ओके, तो यहाँ पे हम फोकस करेंगे ऑन दी सर्टन डिजीजेस. ओके, तो जैसे कि हमारे पास NMCP एक प्रोग्राम है. ओके, सो दिस इज नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम. उसके बहुत सारे नाम चेंज होते गए हैं बाद में. ओके, तो NMCP है. अगर ये प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से होता है तो डेफिनेटली वी कैन रिड्यूस माल न्यूट्रिशन, क्योंकि जो बच्चे हैं, अगेन मलेरिया इट इज़ वेरी वेरी कॉमन इन अंडर 5 एज ग्रुप. मलेरिया को हम कंट्रोल करते हैं तो डेफिनेटली वी कैन कंट्रोल और वी कैन प्रिवेंट द प्रॉब्लम ऑफ माल न्यूट्रिशन. ओके, तो this is one example. We are having many other examples concerned with communicable diseases. One more most important program which is concerned here is immunization. Okay, national immunization schedule जो हमारा है, okay, NIS जो है, तो immunization में हम क्या करते हैं? वैक्सीन्स देते हैं बच्चों को. ओके, तो वैक्सीन की वजह से we can prevent several other diseases which are concerned with the malnutrition. ओके, सो विच आर कंसर्न विद द malnutrition. तो ये जो कुछ भी डिजीजेस है, जैसे कि वी आर हैविंग मीजल्स वैक्सीन. ओके, तो ये वैक्सीन देंगे, मीजल्स नहीं होगा, आगे जाके malnutrition नहीं होगा. ओके, तो हमारे पास ट्यूबरकुलोसिस के लिए है, पोलियोमाइलाइटिस के लिए है. देर आर सो मेनी डिजीजेस विच वी आर कवरिंग राइट नाउ. इवन वी आर हैविंग वैक्सीन फॉर डायरिया. ओके, तो रोटा वायरस डायरिया के लिए अभी वैक्सीन है जो हमारे नेशनल इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल में इंक्लूड किया गया है. ओके, तो उसकी वजह से हम डायरिया को प्रिवेंट करेंगे. डायरिया को प्रिवेंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका इम्पैक्ट माल न्यूट्रिशन पे हो जाएगा. ओके, तो वॉट एवर डिफरेंट प्रोग्राम्स आर देयर दैट आर कंसर्न विद इम्यूनाइजेशन. ओके, वॉट एवर डिफरेंट प्रोग्राम्स आर देयर दैट आर कंसर्न विद द कम्युनिकेबल डिजीजेस. ओके, एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, ओके, तो हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज में वापस रिपीट हो जाएगा एनवायरमेंटल सैनिटेशन. ओके, सो व्हाट वी आर सपोज टू डू, हमारा एनवायरमेंटल सैनिटेशन अच्छा होना चाहिए. अगेन इट इज हैविंग इम्पैक्ट ऑन इन्फेक्शियस डिजीजेस. ओके, फाइनली व्हाट वी कैन डू at international level, what different actions are taken at international level. Okay, so at international level basically 1963 में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम वॉज एस्टैब्लिश्ड. ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट 1963. नेम ऑफ प्रोग्राम इज वर्ल्ड फूड प्रोग्राम. ये प्रोग्राम का एम क्या था? एम ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू प्रोवाइड सेफ फूड. ओके, फूड तो देना है लेकिन वो सेफ फूड देना है. टू प्रोवाइड सेफ फूड to all those individuals who are in need of food. Okay, जो needy people है, to be specifically those are victims, those which are victims of emergency. जहाँ पे disastrous condition है, emergency situations है, okay, वहाँ पे लोगों को safe food देना है. Okay, उसके साथ साथ what we can see is currently, okay, FAO है, Food and Agricultural Organization है. सेकेंडली यूनिसेफ है. ओके, थर्डली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड बैंक है. ओके, ये सब ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते हैं? दे आर हेल्पिंग नेशनल गवर्नमेंट्स. ओके, तो जो कुछ भी नेशनल गवर्नमेंट्स है, जैसे कि हमारा इंडिया का गवर्नमेंट है, बाकी कंट्रीज के जो गवर्नमेंट है, ओके, दीज ऑर्गेनाइजेशंस, आई सेड इट्स FAO, UNICEF, WHO, World Bank. Okay,
they are helping national governments to solve the problem of malnutrition. ओके तो malnutrition का problem ये countries को solve करने के लिए ओके help is given by different organization at international level. Okay, so when we talk about problem of malnutrition, we said first four important thing: undernutrition, overnutrition, imbalance, and specific deficiency. Okay, secondly, you should not forget cultural factors, conditioning factors, what other health services are there, and thirdly, what we can do at family level, community level, national level, and international level. Okay,